Hi guys, good morning. I'm Bala, one of the mentors from Fool's Den. Probably some of you may be knowing me. So guys, we'll be starting our session very soon and probably in another 3-4 minutes. Tab tak, Prajwal sir, am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Yeah, Prajwal sir, maybe you can interact with the students. Sir, Some of them they just left the session. Like I think they are getting bored, waiting. So you can maybe have some informal discussion with them for another 2 to 3 minutes, and then we'll formally start. okay, sir, sure. Yeah. Thank you so much, sir, for giving me this Yeah. opportunity for the moment. So, hi guys, as you all might be knowing me, I am Prajwal and I was an alumni of Foolsden. And currently, you might be, if you're following Foolsden continuously, you might be knowing me as your hotelier buddy. And I currently present a lot of hotel management related stuffs on Foolsden. So, as I interacted with some of the people right now, like Tanvi and Chandni, I think Anjali is yet to lift. To interact with me and to introduce herself. So Anjali, can you please tell me something about yourself before we start with it? Anjali, are you there? And am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah, sir. I think Anjali is not interested to introduce herself right now for the moment. Okay, so let's start with what we were about to, and I think we have one more participant, Pradeep. So, guys, how many of you might be knowing that how is hotel management like? What is your basic idea about hotel management? Before starting the session, I wanted to ask this question to all of you: that what is your idea about hotel management? Someone from you can please unmute yourself and tell me that what is your idea about hotel management? Guys, are you there? Yeah, Prajwal sir. Yeah, sir. Yeah. So एक काम करते हैं थोड़ा सा बहुत सारे लोग नए लोग हैं they don't know how to interact and how to respond and all. Okay. Let's give them a brief intro of the whole session and I'll just introduce you and then we can start this. Okay, sir. Right? Yeah. So guys, a very good morning to one and all. मेरा नाम बाला है, one of the mentors and teachers, one of the founder directors at Fools Gen. So this session, Disha 3.0, is basically the third edition of our annual session in which we talk about the various career opportunities to students. So every year it used to be a common session for CLAT, BBA, HM, BCom entrance exams. But this year we thought we'll conduct it in a different manner. So today basically we have one of our guests here and also the presenter of today's session, Mr. Prajwal, Mr. K. Prajwal. सो प्रज्वल सर जो हैं ये फूल्स डेन के ही एलुमनाई हैं. लास्ट ईयर ये पास आउट हुए हैं एंड इन्होंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स फूल्स डेन के साथ स्पेंड किया है, तैयारी किया है एंड ही इज मोर ऑफ अ फैमिली rather than just a student to us, right? And Prajwal right now is in IHM Bangalore. तो वो फर्स्ट ईयर में है अपने IHM Bangalore में. आपको पता है कि IHM Bangalore टॉप 3 IHMs में आता है इंडिया में. He is pursuing his BSc in hotel management there. Right. And Prajwal, to talk about Prajwal, like he is quite unique a student, you can say, right? He, after class 10th, took humanities with the support of his parents and with the firm belief in himself that, that is one area where he can excel. Jabki, although there was a lot of pressure from his friends and relatives to, not go into humanities, but he was very clear in his head that yes, this is something that I would love to do. This is something where I'm good at and I can do this really well, right? And with that belief and his parents' support, he took humanities. And then he started preparing for all these competitive exams like hotel management and other entrances. And guys, let me tell you that he got successful not just at the HM exams, but at a lot of other BBA and BCom entrances too, right? And this was about his academic background. The other things that make him unique are that he is already a pastry chef. He also has his own brand by the name of Prajwal's Cakery. You can follow him on Instagram and other social media accounts.
and he has his own. He's just started with his own brand, so he's not just a student; he's also an entrepreneur, right? And he loves cooking. He loves, exploring different cuisines, different dishes, and he's very much into food, not just as a chef, but also he loves to explore the different aspects of food, the history of food. Being a humanities student, obviously history comes naturally to him, and he also wants to become a food historian or a food writer. So this is all about Prajwal. I'll just hand over the session formally to Prajwal. And now on, ये आपके mentor होंगे, आप इनसे बिंदास होके interact करिए, बात करिए, जहां आपको जो डाउट्स आ रहे हैं, जो आपके अंदर के फियर्स हैं, ठीक है, जो आपके अंदर का डर है, उसको उनसे शेयर करिए, सारी चीजें। आई होप ये सेशन जो है आपको क्लियर करके देगा, आपको हेल्प करेगा, राइट? एंड आई विल आल्सो बी देयर, डोंट वरी, आई विल आल्सो बी देयर एज अ मेंटोर इन द सेशन। तो जहां जरूरत पड़ेगी आई विल आल्सो कम टू द ऑडियो एंड आई विल एड्रेस यू, ठीक है? सो प्रज्वल सर। Thank you so much, sir, for introducing me so well to Yeah, sir, my Prajwal dear sir, friends. there are a few more new users also, new Yeah, sir. participants। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ठीक Sure, है? sir. एंड सर एक छोटा सा पॉइंट गाइस, सब लोगों के लिए ये है, देखिए हमारे यहाँ पे वेदर थोड़ा खराब है, तो बाई चांस अगर बीच में ऑडियो में दिक्कत हुई तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, कोई ना कोई आके बता दीजिएगा कि ऑडियो क्लियर नहीं है करके, राइट? एंड दूसरी चीज, आप लोग ऑडियो पर भी अपने आंसर्स दे सकते हैं, अपना ऑडियो ऑन करके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऑडियो म्यूट रखिएगा पूरे सेशन में, जब आपको आंसर देना हो तब ऑडियो ऑन करके आंसर दीजिएगा एंड देन फिर से अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। एंड सेकेंडली, आप लोग चैट के थ्रू भी चाहे तो अपने आंसर्स भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? Okay, so I'll hand over the session to Prajwal sir. Thank you, Prajwal sir. Please carry on. Thank you so much, sir. So hope I am both visible and audible to you all. So now we'll be starting with our today's session, that is Dasha 3.0, and I formally welcome you all to this session where we are going to talk only about hotel management and what are the career prospects, how and what entrance one should give, and what way one should prepare himself for the entrance exams. How is the life in an IHM, and how do we proceed for our after the hotel management life, and what are the career prospects. There are many more things in this particular session. After that, we'll be also addressing your questions. So guys, let's start this session today, and I'll be starting with my presentation. This is all about what are the exams one should give, what are the career prospects, what is hotel management particularly. But before we begin, I think we have some new participants joining us. So I would like to request them all to kindly introduce themselves. Pradeep, are you there? Can you please introduce yourself? गाइस सर जिनका भी नाम ले रहे हैं, आप लोग अपना ऑडियो ऑन करिए, नीचे देखिए एक म्यूट अनम्यूट करके बटन होगा, उसको क्लिक करके अपने आप को अनम्यूट करिए और एक ब्रीफ इंट्रो देके फिर आप फिर से म्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो। Yeah. Hello. Who's there? Pradeep is there, right? हाँ सर, मैं प्रदीप बोल रहा Hi, Pradeep. हूँ। हाँ सर, हेलो। Yeah, Pradeep. Kindly introduce yourself to the हाँ सर, gathering. my name is Pradeep. I am from Karnataka. Okay. That's too good. हाँ सर। Any other information, sir? Yeah, so yeah, you can tell us about your academic background, from which school you are, what you want to be in future after doing hotel management. So it would be much easier for me to explain you all. Sir, I want to join in food production in the hotel management. Okay. Because I am very interested in make a different type of food. That's too good. That's too good, in fact. Sir, I am from in the college, but I am still studying 12th class. Okay. But I am dropping this year. Pradeep, really sorry. Can you please unmute yourself? You are like not audible. Hello, Pradeep, are you there? सर आगे प्रोसीड करिए, मे बी देयर इज सम Sure, प्रॉब्लम। sure. हेलो So- सर, मेरा वॉइस Yeah, your voice is clear. Your voice is clear, Pradeep. हाँ सर, मेरा यहाँ थोड़ा नेटवर्क बहुत कम है। Okay, no issues, no issues. We understand. Okay, sir.
So you were telling that you are very much interested in food production, I think. हाँ सर, हाँ मैं फूड Okay. प्रोडक्शन में अभी मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। Okay. और कोरोना वायरस की वजह से मेरा कॉलेज जाना छोड़ना पड़ा दिस ईयर। Okay. वो अगले साल मैं एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ 12 के, इसके साथ में भी NCMCT उसका भी एग्जाम का भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। That's too good. That's too good, in fact. Thank you, sir. So we have Roshesh Chobe in the meeting. Roshesh, can you please unmute yourself and tell us about yourself? Yeah, so first of all, good morning, Prajwal, Good sir. morning. And I'm Roshesh Chaube from Pune, and I've just passed my 10th grade, and I'm looking for admissions in 11th. So I'm planning to give NCHM CT JEE exam after 12th. So I've got 2 years to prepare. That's too good. That's too good. And next we have Simran Bhanot. Simran, can you please unmute yourself and tell us something about yourself? Good morning, everybody. My name is Simran. I am currently in 12th. I'm in 12th grade. I'm from Bangalore, and I plan on giving NCH MCT JEE exam. Actually, I am really very much interested in hotel management. But sir, I wanted to ask you a question, if you do not mind. Yeah, sure. The session is only for your questions. You can, put it up very easily. Kindly ask your Yeah, question. so I wanted to know that, like, now because of the pandemic, many hotel management institutes and the hotel industry especially has faced a lot of downfall. So is it okay to, like, to pursue a career in hotel management as of now? Simran, being very honest, I'll just answer this question after I'll complete with the presentation. The question is very valid. In fact, the people who are pursuing hotel management right now also have the same question. So even we as well. But I'll be answering this question, after completing this entire presentation. This would be the first question I'll be addressing. So kindly have some patience and wait for the answers from my side. And I'll be surely answering this question. Yes, sir. Thank you so much for asking this question. This was basically a very, I should say, a very valid question to be asked right now. Thank you, sir. Okay, thank you so much for asking it. Okay, I'll just keep in mind. Can you please repeat your question once more? So my question was that due to the pandemic, a lot of hotels have faced a downfall. So is it okay to pursue a career in hotel management as of now? Okay. Okay. So thank you so much, Simran. Now, I think we have Anjali in the session. I think Anjali hasn't introduced herself yet. Anjali, you can unmute yourself and you can introduce yourself to the session. Anjali, there is a button of unmuting just below you. You can easily click that and unmute yourself. Prajwal sir. Yes, sir. Yeah, I think we can start with the session because maybe there is, some problem with their audio and all. So Okay, better sir. we can start with the session and we can interact with the students in the field. Right? Okay, sir. Sure. So, Everyone may be interested in the introduction. Yeah. So let's get okay, started. sir. Sure. So we'll be now starting with the presentation. Here I'll be telling you all about hotel management, what it is as a career option, and what it is as a subject of study, and how one should enter, and what one can, what are the things we should, do while pursuing our preparation time, and what all are those things. I'll be just clarifying you through this presentation. So first is about hotel management. That is so first we'll be moving towards hotel management as a career. So what is hotel management as a career? So it is generally identified as a study of hospitality, tourism, service, and food. Of course, most of the people who are in the session are much more interested in becoming chefs. So I think, food becomes a very important part, of course, but apart from food, hotel management has a lot to do with other things also. It also has service, it also has hospitality, it also has tourism. It is not only related with tourism but also with other industries. I'll be just telling you the names of other industries to what it relates with. It relates with management, it relates with food production in a very mass scale. Industrial food production and many things are there.
and purely as a basis of industry, it is more to deal with people. We have a largest human resource capacity as compared to any other industry in the world, and it's one of the best fields if you're passionate about it. Now moving towards the next slide, it is how one can enter the industry by doing either a bachelor's or master's degree in hotel management, and the same degree, but it has different names in different institutes. So either it could be BSc, it could be BA or anything. हर एक institute अलग अलग नाम देता है इस particular degree को, but at the end सब चीजें same है. Let's move towards the next slide. The best exams you can take. So in order to reach your destination, आपको काफी सारे exams crack करने पड़ेंगे, या एक exam भी crack करना आसान रहेगा, but I recommend multiple exams are always better. So these are the top 4 exams of the country जिसके through आप hotel management sector में enter कर सकते हैं. So the first entrance exam is NCHMCT JEE, जिसमें ज्यादातर बच्चे इस एग्जाम को देते हैं. So अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो हम IITs को सबसे अच्छा मानते हैं इंडिया में. अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हम एम्स को सबसे अच्छा मानते हैं, और अगर हम लॉ की बात करें तो हम NLUs को सबसे अच्छा मानते हैं. वैसे ही जब हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो हम IHMs को सबसे अच्छा मानते हैं. IHMs का जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो NCHMCT JEE के थ्रू ही होता है. So as you can see in the slide, it is the entrance exam for 21 central IHMs, 25 state IHMs, and 1 PSU, and 24 private IHMs. Okay. Next comes is IIHM ECHAT. That is for entrance in 10 IIHMs across the world. एक्चुअली IIHM एक इंडियन ब्रांड है जिसके अलग अलग कॉलेजेस है जो इंडिया के बाहर है. वन इज इन समरकंद एज आई रिमेंबर. नेक्स्ट इज CUET, दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी एक BHM प्रोग्राम ऑफर करता है, एंड उसके लिए CUET उसका एंट्रेंस एग्जाम है. And fourth one is Oberoi STEP. This is personally one of my most favorite exams which I have appeared for. So Oberoi STEP basically is a program जिसके through आप Oberoi Group या Oberoi Learning and Development Center के through अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इस एग्जाम की काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि इस एग्जाम को क्रैक करने वाले बच्चे को देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पेनी टू बी गिवन फॉर योर स्टडीज़. आप सारी पढ़ाई अपनी फ्री में कर सकते हैं. आपका रहना, आपका खाना, सब चीज ओबरॉय ग्रुप एज स्टूडेंट आपको अडॉप्ट कर लेगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस एग्जामिनेशन वन कैन गो थ्रू. सो अब हम लोग बेसिकली क्या है, अलग अलग एग्जाम की बात करेंगे और उनके अलग अलग सिलेबस भी होते हैं. सो लगे हाथ हम इनके बारे में भी बात कर देते हैं. सो NCHMCT JEE के अंदर अराउंड 5 सेक्शंस होते हैं. या सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्सट्रीमली सॉरी. सो गाइस, एक चीज बताइए, अभी तक जो प्रज्वल सर ने अलग अलग एग्जाम्स की बात की, आप लोगों में से कौन कौन से लोग इनमें से कौन से एग्जाम्स की तैयारी का सोच रहे हैं? थोड़ा सा सर को बताइए ये चीज इंटरेक्शन के थ्रू. आप लोग अपने चैट पे भी बता सकते हैं या ऑडियो के थ्रू भी बता सकते हैं कि आप कौन कौन से एग्जाम्स आप लोग देने का सोचे हो. NCHMCT JEE. ओके, NCHMCT JEE सोचा आपने. ओके, और लोग शेयर करिए प्लीज. तन्वी ने भी NCHM सोचा है, प्रदीप भी वही सोच रहे हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल NCHMCT JEE का सोच रहे होंगे. Great. Sir? Yeah. So first of all, I don't even knew about all this examination. I just knew about IIHM, ECHAT, and NCHMCT. So Yeah. now I came to know that these 2 examinations also exist. I'm also trying to attend all these entrance examinations. Yes, great. Thank you. Great. Okay, wonderful. तो जैसा सर बोले, देखिए एक्चुअली जैसे सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, प्रज्वल सर ने, कि आपको एक्चुअली सारे एग्जाम्स देने चाहिए. ठीक है, दैट्स वन पॉइंट व्हिच इज 100, आई मीन दैट्स $1 million आई वुड से सजेशन. ठीक है, तो अभी यही है कि आपको ये जितने एग्जाम्स दिख रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्स देने हैं. उनके डिटेल्स से लिए प्रज्वल सर आप आगे कंटिन्यू करिए, एंड या बीच बीच में स्टूडेंट्स से आप इंटरेक्ट करते रहिएगा. ठीक है सर, यू मे कंटिन्यू. श्योर. सो NCHMCT JEE के बारे में आई थिंक ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द टॉप होटल मैनेजमेंट एग्जाम्स, और ज्यादातर बच्चे इसके लिए अपीयर करना चाहते हैं और करते भी हैं.
So NCHMCT JEE का एक syllabus होता है अलग सा, which is NCHMCT JEE के अंदर basically there are 5 sections which cover the things like logical reasoning, basic mathematics, जो class 10 तक हम पढ़ते हैं वो वाला mathematics होता है. It's also including the things like English, and service sector aptitude, जो दोनों मिलाकर इस पेपर का highest I should say एक ratio form करते हैं. और last but not the least section is GK and current affairs, which is again very important. So इन 5 सेक्शंस के बारे में हम आगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करेंगे. रही बात, हम अगले IIHM ECHAT के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. सो IIHM ECHAT आखिर है क्या चीज? और IIHM ECHAT basically is an entrance exam to the 10 IIHMs which are located across the world. I remember एक समरकंद में था because we appeared for this examination. So IIHM ECHAT is for IIHM, that is International Institute of Hotel Management. So next is CUET, which is known as Christ University Entrance Test. So CUET is for the admission in BHM program offered by Christ University. Okay, so Christ University भी अपने अंदर में एक tourism और होटल मैनेजमेंट एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत यूनिक प्रोग्राम चलाता है जिसको आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं. एंड ओबरॉय का एक सबसे अच्छा एग्जाम है. एक्चुअली एग्जाम्स इनके अलावा भी काफी सारे, बट ये इंडिया के टॉप एग्जाम्स है जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं और हमने अपीयर करते हुए देखा है और कईयों को हमने खुद अपीयर भी किया है. सो ओबरॉय स्टेप एक बहुत अपने आप में एक बहुत यूनिक एग्जाम है. In case if you are interested to pursue hotel management without spending a single penny, Oberoi STEP is a perfect program for you. But still it is one of the most difficult exams क्योंकि इस एग्जाम में एक भी रिटर्न टेस्ट नहीं होता है. It only includes multiple rounds of interviews in a way. Okay, so Oberoi STEP में सिर्फ और सिर्फ interviews होते हैं. So I think last year ये interviews 3 rounds तक extend किए थे, अक्सर 4 या 5 rounds तक भी extend होते हैं. So Oberoi STEP is actually a very unique program. और अगर आपने इस एग्जाम को क्रॉस कर लिया और आप ओबरॉय लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर तक अपने पहुंच गए, आपको ओबरॉय की किसी भी प्रॉपर्टी में आने वाले 3 साल तक एक प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से काम करने को मिलेगा. आपको एक NCHM CT और IGNOU की तरफ से एक डिग्री भी मिलेगी. आप प्रैक्टिकली अपना सारा चीजें सीख पाएंगे. आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, उल्टा ओबरॉयज विल पे यू एज अ स्टाइपेंड. And there are many things through this examination जो एक कर सकता है. और उसके बाद you don't even have to worry for your placement क्योंकि आप ये सब चीजें करने के बाद आप ऑफिशियली ओबरॉयज की किसी भी प्रॉपर्टी में प्लेस हो सकते हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. ओके, सो देयर आर मल्टीपल एग्जामिनेशन होटल मैनेजमेंट के अंडर में जहां ज्यादातर लोग इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं बिकॉज NCHM CT JEE और IIHM ही शायद इस समय इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुके हैं. But still there are thousands of best examinations what a aspiring hotelier can appear for. Okay, so I think these are the 4 major examinations in India जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे और सबसे best examinations है for hotel management. Apart from that there are many more you can go and find out about them. बहुत सारी जगहों से आप बहुत अच्छे अच्छे sources से मिल सकते हैं, including हमारे Fulsden के पास भी ऐसे कई सारी चीजें हैं. You can go to our websites and all those things, you can find about them. You can also go to many career counseling websites जहाँ के थ्रू आप इन अलग अलग कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं. You can go through all these areas और आपको कौन सा एग्जाम सबसे बेस्ट सूट करता है, आपको उनकी डिग्रीज कैसे सूट करती है, what are the career prospect after those degrees, ये सब आप इंटरनेट के थ्रू अपने लिए पता कर सकते हैं. मैं आपको इन 4 के बारे में भी बताता हूँ. NCHM CT JEE होता है आफ्टर क्रॉसिंग दिस डिग्री 3 years के लिए हम पढ़ाई करते हैं और आपको you get a degree known as BSc in Hospitality and Hotel Administration, which is a 3 years degree program. Okay, next is IIHM के through we appear for BA honors in multiple areas such as culinary arts and front office and many other fields जो एक specialization होता है. But I believe it's always better to go for everything क्योंकि IIHMs में एक complete hotelier को तैयार किया जाता है instead of a front office F&B और हाउस कीपिंग और किचन पर्सनल. ये एक कंप्लीट एक होटेलियर को तैयार करता है मेरे ओपिनियन में. IIHM के अंदर देयर आर स्पेशलाइजेशंस फॉर एवरीथिंग जो थोड़ा लिमिट करता है. तो मेरे हिसाब से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. प्लीज अपने हिसाब से इस चीज को आप ऑल्टर कीजिएगा अपने लिए. नेक्स्ट इज CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, विच इज फॉर द BHM डिग्री, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट. अगेन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना एक काफी बड़ा नाम रखती है एंड इट्स वन ऑफ द
good degrees if you are aspiring to be a hotelier. ये डिग्री पर्टिकुलरली आई थिंक क्राइस्ट के बैंगलोर के कैंपस में अवेलेबल है जहाँ तक मेरी नॉलेज है. एंड यू नो लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज ओबरॉय स्टेप. ओबरॉय स्टेप भी बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करता है बट विदाउट एनी क्लासरूम. बट स्टिल आपको यू नो वो सारी डिग्रीज जो एक आईएचएम से मिलती है, ओबरॉय स्टेप को क्रॉस करने के बाद ओबरॉयज के थ्रू भी आपको वो सेम डिग्री मिलेगी. Okay, now let's move towards the next Okay. slide. Ki bhai, Excuse me, sir. yeah, sure. Yeah, what's the question? So one question is that after Yeah. giving the Oberoi, after getting selected for the Oberoi STEP program and getting the degree, is it compulsory कि Oberoi में ही काम करना पड़ेगा या काम मिलेगा या Actually, it दूसरे? is. अच्छा, so और कहीं नहीं काम कर सकते? You have to work for Oberoi only. Wait, I'll just answer this question. You know, the question stands, you know, very concerning for the students after I gave the statement. And, you know, इतना होता है कि, you know, it will be like just a fact कि एक particular time के लिए आप ओबरॉय के साथ एक contract sign करते हैं कि इतने टाइम पीरियड से लेके इतने अपने ग्रेजुएशन से लेके इतने टाइम पीरियड तक मैं सिर्फ ओबरॉय के साथ ही काम करूंगा. ओके, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज यू नो ओबरॉय आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कर रही है, यू नो आपको इतना रिसोर्स दे रही है और आपको सब दे रही है. जाहिर सी बात है कोई भी यू नो इंडस्ट्रीज चाहेगी कि यू नो वो बंदा उसके पास एक टाइम पीरियड तक रहे, उसके डेवलपमेंट तक रहे. एंड यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ Yes, थिंग्स. ओबरॉय yes, sir. काफी बड़ी चेन है इंडिया की. शायद यू नो इफ ओबरॉय के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिल रहा है ना इन फ्यूचर, तो आई विल डेफिनेटली से यू नो वो एक ऐसी चीज है जो यू नो हर होटेलियर उसके लिए एस्पायर करता है. ओबरॉय मैं आपको एक बात बताता हूँ. हम लोग आज अपने होटल मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और यू नो प्लेसमेंट्स के लिए जब बैठते हैं ना जाके, सो यू माइट नॉट बी नोइंग ओबरॉय का इंटरव्यूज और ओबरॉय के एग्जाम सबसे टफ होते हैं क्रैक करने के लिए, सबसे टफ. एंड दिस इज अ फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू. और यू नो हर एक बंदा जो अच्छा. हमारे होटल मैनेजमेंट कर रहा है, most of them aspire to be an employee of Oberoi in future. So you know it's a very unique program of its own. Okay, और यू नो अगर आप एक ओवरऑल स्टेप के थ्रू जाते हैं ना तो यू नो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. बट स्टिल यू नो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है अपने आप की. यू नो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती. वो सब चीज़ें यू नो अदर एग्जाम्स में नो हम आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे. बट आई थिंक राइट नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. एंड बाय द वे I think who was it? I think it was Roshnesh, right? Yeah, Roshish. Roshesh. Oh, sorry, Roshesh. Really sorry. Thank you for your question. So let's Okay, move thank you, towards sir. let's move towards the next slide. So next is the examination pattern for NCHM CT JEE. ओके, सो यू नो मैं एनसीएचएम सीटी जेडब्ल्यू के बारे में ज़्यादा कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम क्या होता है कि एक मेजर यू नो इंडिया का एग्जाम है. एंड यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन दैट वे. ज़्यादातर एग्जाम में यही सेम पैटर्न फॉलो होता है इंक्लूडिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, IIHM ईचैट. IIHM ईचैट में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होती है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड और जीडी के राउंड्स एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होते हैं. ओके, सो mode of examination for all the examinations what I spoke except Oberoi step is a computer based test और online जो हम commonly जिस नाम से जानते हैं. इस एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटा होता है and all the questions are MCQ type. The syllabus or the particular subjects which are covered in this particular exams are numerical ability and quantitative aptitude, reasoning and logical deduction, general knowledge and current affairs, English language and aptitude for service sector. ओके, सो मैंने इनके मार्क्स वाइज यहाँ ब्रेकअप्स दे दिए हैं. और यू नो इंग्लिश और सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड इस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो यू नो ओके, आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन राइट नाउ. यू नो आई थिंक हम सबके सब यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं और आई थिंक देयर आर सम पीपल हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बिकम एस्पिरेंट्स, बेसिकली हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू यू नो बिकमिंग इन दिस एस्पिरेंट लाइफ. एंड यू नो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की स्टार्ट कर रहे हैं कुछ लोग. सो क्या कभी आपने सोचा है कि सारे एग्जाम्स में, मोस्ट कॉमनली सारे एग्जाम्स में एक्सेप्ट सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड, हर एक एग्जाम जितने आप इंडिया में देखेंगे उनमें ये 4 सब्जेक्ट्स काफी अच्छे से लिखे जाते हैं. लाइक यू नो इनका एक बहुत तगड़ा वेटेज भी होता है और ये सारे के सारे सब्जेक्ट उस एग्जाम में होते हैं एक्सेप्ट द सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. सो कभी आप में से किसी ने सोचा है कि ये 4 सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? Guys, I want your answers. If you know someone who has crossed 10th right now, if he's there in the session, you can tell us because 10th वाले ज़्यादातर बच्चे NTSC भी appear करते हैं and you know who have already crossed 10th as well. So you know guys, I want some answers from you कि आपको क्यों लगता है कि ये sections इतने importantly यहाँ रखे जाते हैं हर बार, हर एग्जाम में? Anyone?
Guys, are you there? And was my question clear? That why these questions are like why these sections and subjects are always there in any examination? You can answer from whatever you think. No worries. Hello, anyone there? So, guys, is anyone not interested to answer this question right now? It seems to be. Can I try? Yeah, sure, sure. I guess they just want to test कि हमने 10th तक क्या पढ़ाई की है, कितने अच्छे से समझा है, क्या पढ़ाई की है, and what all we have taken out from our education from 1st to 10th. Maybe. I'm not sure. Okay, Roshesh, you are partially right for this particular question because these subjects give a general idea about students' academics. Niket, you are also, a very point away, like, I should say, not even point away, you are also correct with this. रोशनेश ने आधा आंसर दिया और निकेत ने आंसर आधा आधे दे दिया है मुझे. सो आई एम मोर देन सैटिस्फाइड कि पीपल हियर अंडरस्टैंड कि इन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने के पीछे क्या साइंसेस है इनके पीछे और क्यों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स का एक बहुत मेजर रोल होता है. सो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेसिकली आपका एक बहुत जनरल आइडिया दिखा देते हैं सबके सामने कि आपका दिमाग कैसा काम करता है. हम हाउ डू वी थिंक एंड हाउ डू वी प्रोसीड फॉर आर फर्दर अपकमिंग प्लान्स. एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर के जो होटेलियर को बसे हुए होटेलियर को ये बाहर निकालने में मदद करता है. आपके अंदर के सोए हुए होटेलियर को जगाने में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए इनका एक अच्छा खासा हर एक एग्जाम में रोल होता है. स्पेशली एनसीएचएम सीटी जेडब्ल्यू में इसलिए होता है क्योंकि एक होटेलियर में ये सब चीजें होना बहुत जरूरी होता है. आपको क्रिटिकली सोचना आना चाहिए, आपको कंडीशंस को एनालाइज करना आना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल जो गेस्ट आपके वहाँ पे आ रहा है उसके साथ कुछ गलत हम होने नहीं दे सकते क्योंकि आपको बहुत हैवी अमाउंट पे करता है हर चीज के लिए. ओके आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर होटल मैनेजमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो. एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर जस्ट बिकॉज आपको सर्विस देनी है तो हाउ विल यू सर्व द पीपल. And that's what the exact thing is. So now next move towards the next slide, which is all about the subject wise preparation strategies. I think many students who are I think there is also a person who is currently on the track of an aspirant, and many of us are also completing with our preparation or maybe starting, or shortly many of us will be appearing for the examinations. So अलग अलग subjects के लिए अलग अलग strategies हम use करते हैं जब हम लोग एक्सक्यूज मी अलग अलग स्ट्रैटेजीज जब यूज करते हैं जब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम अपियर कर रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक यूनिकनेस होती है और हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग एक स्ट्रैटेजी होती है जब हम उसे अपियर करते हैं तो. सो इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन इस पूरे एग्जाम में. इसलिए मुझे लगता है कि पहले इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए. इंग्लिश हमारे लिए दो काम करता है. ओके कभी भी एक बात समझिएगा कि इंग्लिश के थ्रू हम दो चीज़ों के अंदर जा सकते हैं. पहली चीज़ तो ये है हमारे लिए कि हम अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके पूरे एग्जाम में क्योंकि एंटायर एग्जाम इज इन इंग्लिश मीडियम सो पूरे एग्जाम की लैंग्वेज हमारे लिए क्लियर हो जाती है. दूसरी चीज़ वो पर्टिकुलर सेक्शन हमारे लिए आसान होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ट्रिकी सेक्शन होता है इस पूरे एग्जाम में. सबसे ट्रिकी सेक्शन है इस एग्जाम का अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो. सो इंग्लिश की ऊपर जाए तो इंग्लिश में तीन चीज़ें होती है. जब हम प्रिपरेशन के बेसिस पे इसे बांटते हैं तो इंग्लिश को हम तीन सेक्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं. पहली चीज़ होती है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरी होती है ग्रामर और तीसरी होती है वोकैब. सो जब हम इंग्लिश की बात करें तो पहली चीज़ आई है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम जो आरसीज सॉल्व करते हैं और उस आरसीज के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस आती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, एरर फाइंडिंग आती है, ये सब जो चीज़ें आती है सब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होती है हमारे लिए. ओके एरर फाइंडिंग इज अगेन लाइक हम लोग उसको ग्रामर में भी इंक्लूड करते हैं बट स्टिल हम लोग यहाँ पे भी उसको डालते हैं फॉर रीजन. कॉम्प्रिहेंशन भी इसलिए क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में ये कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में. नॉट ओनली इन अंडर ग्रेजुएट्स बट आफ्टर ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में भी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है. तो कॉम्प्रिहेंशन पे हमारा काम करना ज़रूरी है. तो कॉम्प्रिहेंशन पे हम कैसे काम करते हैं? सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहली चीज़ तो होती है रीडिंग. आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. आप उसको रीड करके कितना जल्दी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इस चीज़ पे मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को काम करना चाहिए अगर आपको अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो. हमने भी किया था. बेसिकली हमारी रीडिंग स्पीड भी अच्छी नहीं थी बट लेटर ऑन वी ऑल्सो
वाइल बीइंग इन आवर सेशंस, और हम जब अपनी क्लासेस में बैठे थे तो उस चीज़ पे काफ़ी काम किया जाता था, स्पेशली रीडिंग स्पीड पे। एंड अगर आप घर पे बैठे हैं और अभी आप अपनी रीडिंग स्पीड ठीक करना चाहते हैं, वन थिंग यू कैन डू इज आप रेगुलरली न्यूज़पेपर और नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि दिस इज द बेस्ट वे थ्रू विच वी कैन improve our English. Apart from that, sectional tests are also very important. आप सेक्शनल आरसी का सेक्शनल टेस्ट दीजिए हर दिन। ऑलमोस्ट एवरी आरसी विल हार्डली टेक अराउंड 5 से 10 मिनट लगता है एक आरसी को सॉल्व करने के लिए, एक अच्छे एस्पिरेंट को, इफ यू आर गुड इनफ। या आप थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम एक आरसी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इफ यू आर सिटिंग फ्री राइट नाउ एट होम। ओके, नेक्स्ट इज ग्रामर। सो ग्रामर को एक बहुत कॉन्सेप्ट बेसिस पे बांटा जाता है, क्योंकि ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एरर फाइंडिंग, subject verb agreement, and many general topics of grammars like verb, nouns, preposition, pronouns, and many more, उन चीज़ों पे questions आते हैं। So grammar एक continuous sectional test और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू प्रिपेयर करने वाला सेक्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्ट्रैटेजीज बनानी जरूरी है कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अलग स्ट्रैटेजी का यूज होता है यहाँ पे। ओके, सो इसलिए हम ग्रामर को एक कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच से ही पढ़ते हैं, और कुछ चीज मगअप नहीं करनी है यहाँ पे। ओके, हर चीज को हमको समझना है, हर चीज क्यों और कैसे होती है, हर चीज के पीछे का एक रीजन है यहाँ पर भी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वोकैबुलरी। यहाँ पे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट वोकैबुलरी को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। सो ये बुक आप खरीद सकते हैं, आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है, एंड आपके किसी नियरेस्ट स्टेशनरी स्टोर पे भी या बुक स्टोर पे ये बुक अवेलेबल होगी, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस बुक को खरीदते ही खरीदते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक पेंसिल लीजिए और इस बुक के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो वर्ड रूट्स और वर्ड्स और उनके फाइनल वर्ड से रिलेटेड होती है, और आप इसके थ्रू अपनी चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं फॉर योर वोकैबुलरी प्रिपरेशन। एंड आई थिंक this book is more than enough for your preparation of vocabulary and other things in your exams. So guys, one thing more, I have spoken many things about the preparation. What is your idea about preparation of English? आपको क्या लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो? Any other answers from your side? Guys, anyone, like what is your idea to अंडरस्टैंड कि भाई इंग्लिश को क्यों और कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? ओके, प्रदीप हैज गिवन अ गुड आंसर, न्यूज़पेपर रीडिंग, या इट्स ऑफ कोर्स अ गुड थिंग, आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सो प्रदीप, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? प्रदीप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। या दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके, हाउ डिड आई प्रिपेयर? इट्स अ बिग क्वेश्चन, आई विल जस्ट टेल यू। मैं उसी पर आने वाला था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी। तो आई वॉज ऑलरेडी a 2 year student at Fullerton. So 2 साल में क्या होता था कि मेरा काफ़ी सारा टाइम जो था वो इंस्टीट्यूट में ही निकलता था। आफ्टर लाइक माई स्कूल आई यूज टू कम टू द इंस्टीट्यूट, एंड हम लोग काफ़ी सारे सेशंस करते थे। हम लोग मैंने 2 चीज़ें की थी, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर होटल मैनेजमेंट, एंड वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन गई थी। व्हाट वी डिड वाज हम लोग नॉर्मन लुइस को एक बार सॉल्व करते थे, एंड व्हाट वी डिड वाज हम लोग जब नए वर्ड्स निकलते थे ना, उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में बोलने की कोशिश करते थे। ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है अगर आप वर्ड्स को याद करें। तो अगर आपको वर्ड्स बेसिकली ऐसा ही कि आपके रोज की भाषा में आ चुके हैं ना, सो ट्रस्ट मी, आपको वोकैबुलरी के सेक्शन में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आपको वर्ड्स को फिर याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको उनका मीनिंग पहले से पता है। सो दिस वाज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम मोस्ट, या बाय वाचिंग इंग्लिश सीरीज फॉर या दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर आप मूवी वॉचर है या सीरीज वॉचर्स है, तो दिस कुड बिकम अ गुड वन फॉर यू। आप इंग्लिश सीरीज देख सकते हैं कोई अच्छी, आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। एंड बी ऑलवेज रेडी टू लर्न। ओके, लर्निंग कहाँ से कब कैसे आती किसी को पता नहीं होता यहाँ पे। सो हो सके तो एक छोटा सा नोटपैड लेके हमेशा अपने पास रखिएगा, कहीं पे भी आप बैठते हैं जहाँ पे। सो अगर आपको कुछ अच्छा दिखे तो आप नोट कर सकते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो वेरी गुड थिंग दैट्स Chani has made a very good point here by watching English series for improving the spoken English skills. That's very good thing. Next we'll move towards service sector aptitude. सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड भाई कैसे और क्यों आपके पेपर को इतना अफेक्ट करता है? क्योंकि सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड इंग्लिश के बाद सेकंड सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन होता है। और एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर इज लाइक एक होटेलियर के अंदर के उस
एक एस्पिरेंट के अंदर के उस होटेलियर को पहचानने में यहाँ पे एग्जामिनर्स की मदद करता है कि क्यों हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड हम एक चीज कहेंगे कि यू शुड वर्क ऑन टाइम बेस्ड अप्रोच एंड अपीयर फॉर कंटिन्यूअस सेक्शनल मॉक्स। इस सेक्शन को पर्टिकुलरली क्रैक करने के लिए कोई सब्जेक्ट्स या कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स एज सच हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ से एकदम से आई कैन से कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ डिसाइडेड नहीं होता है, बट स्टिल कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होटेलियर्स की क्वालिटीज को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं आपके। सो appearing for sectional mocks and working on time based approach is very important. Okay, next is numerical ability and quantitative aptitude. So numerical ability, that is mathematics. अगर हम mathematics का एक बहुत fancy सा नाम है यहाँ पे, that is numerical ability and quantitative aptitude. So how we should proceed for numerical ability and quantitative aptitude? You should work on your calculations. You should practice every concept where you are not confident or not scoring well. Okay, so there are three things: calculation, concept and practice. That is CCP approach for mathematics. Okay, so ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये भी समझिएगा जरा। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय एग्जामिनेशंस मैं स्पेशली एक बहुत बड़ा मैथ्स फोबिक गाय हूँ। लाइक आई डोंट लाइक मैथ्स एट ऑल। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप बाला सर से पूछ सकते हैं, मैं मैथ्स में बहुत भागता था। मैथ्स ऐसा चीज था कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। शायद ह्यूमैनिटीज लेने का सबसे बड़ा कारण मेरे लिए यही था। सो व्हाट द थिंग वाज दैट ना कि व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, कि बाला सर ने कुछ एडवाइस दी थी, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कैलकुलेशन फर्स्ट। आप अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चंस जल्दी बना पाएंगे। सो आपके लिए वो मैथ्स का सेक्शन आसान होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है और उसके बाद उसके पीछे पूरा का पूरा कैलकुलेशन लगाना है, दैट्स इट, and you have to practice it every time. So I think CCP approach, that is calculation, concept and practice, are very important. Okay, so I think चलिए मैंने मैथ्स सर्विस सेक्टर की बात की है, तो सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड में आपको क्या लगता है कि क्या क्या और हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स व्हाट आई स्पोक, व्हाट यू ऑल बिलीव कि सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड में और क्या होना चाहिए? Any answers from your side, guys? Like what should be done for the service sector aptitude section? Like any guesses? जितना मैंने अभी तक इस सेक्शन के बारे में आपको समझाया या क्या क्या चीजें इसमें मैंने आपको बताई, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग बना कि what should be your approach towards service sector aptitude? You can also unmute yourself and answer my question. It would be even better. May I? Yeah, sure, you can. Yeah, so yesterday only I solved the last year paper. Actually, I not solved. I just went through the paper last year, NCHM CT paper. So when I was going through the service sector aptitude section, I thought it was more of like common sense based questions. It was very much easy as compared to other sections. It was more of just using your head, and it was very easy, I guess. Okay, that's very good thing, Roshesh. That's like तुमने एक बहुत important part answer कर दिया इस पूरे discussion का कि service sector aptitude is more based on common sense. आपको अपनी common sense लगानी आनी चाहिए, and thank you so much for that. Basically आपको अपने common sense के साथ ही इस पूरे section में work करना पड़ता है. Okay, so समझिएगा कि time based approach के साथ यहाँ पे common sense भी important है. आपको हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन चाहता क्या आपसे पूछना, और एग्जामिनर उस क्वेश्चन के थ्रू आप में क्या देखना चाह रहा है। और इन सब चीजों को ना भी रखो तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, आइडियल रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ट्राई, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट इन सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट कम्स इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये वो सेक्शन है जो काफी सारे एस्पिरेंट्स को आफ्टर मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा हॉन्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई फिक्स सिलेबस नहीं है और ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे हर अच्छे से अच्छा आदमी मात खा सकता है। सो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये एक ऐसा सेक्शन बनता है हमारे लिए जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोग के लिए हर हफ्ते एक टेस्ट होता था। उसके लिए हर हफ्ते क्या, व्हेन वी स्टार्टेड जब एग्जाम पास आया था हमारे, तो ऑलमोस्ट हर दिन एक अलग से एक मॉक होता था।
So what the thing is, if I think NCHMCT JEE के लिए थोड़ा सा टाइम अगर हमारे हाथ में है, because the exam is a bit away as per the announcements by NCHMCT. So उसके लिए क्या है कि करंट अफेयर्स को आई थिंक कंटिन्यूस अपडेट्स के साथ सीखा जा सकता है. ओके, आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आसपास आपके क्या हो रहा है. आप अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अपने सब चीज़ों लाइक जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहा है. इनफैक्ट अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना भी चाहते हैं, सो फूल्स डे ने कैटलिस्ट नाम की मैगजीन हर महीने लॉन्च करता है अपनी. हर महीने हमारी एक मैगजीन आती है फूल्स डे की, विच इज नोन एज कैटलिस्ट. आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ट्रस्ट मी, ये मैगजीन में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स के एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको हम अलग से वी जस्ट डिफाइन देम एवरी लाइक हर एक फील्ड के लिए यूजफुल है. इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर थिंग्स, आप मल्टीपल एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये एक पर्टिकुलर मैगजीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, चलो ठीक है, हम जीके पर आ ही गए हैं एंड करंट अफेयर्स की हमने बात कर ही ली है. एंड स्टैटिक जीके के बारे में अगर ज़्यादा कुछ ना कहूँ, तो इट्स जस्ट अबाउट आप ऑडियो विजुअल सोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं. फुलजन की करंट सेशंस भी हो रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट स्टैटिक जीके एंड जीएस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, you can use a book known as Lucent's General Knowledge. It's a very good book क्योंकि मैंने भी इस बुक को यूज किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज. सो स्टैटिक जीके हमारे लिए एक आसान चीज होती है क्योंकि काफी चीजें उसके साथ आप पढ़ते जाते हैं. हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वर माय सब्जेक्ट्स. सो आई वाज एबल टू रीड थ्रू इट. सो गाइस, चलो आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे. एक होटेलियर के लिए इतना इन्फॉर्म्ड होने की जरूरत क्यों होती है? व्हाई अ होटेलियर नीड्स टू बी सो मच इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है होटेलियर की. जब हम लोग आज होटल मैनेजमेंट कर भी रहे हैं, सो हमारे लिए एक अलग से सेशन होते हैं जनरल नॉलेज के लिए. सो व्हाई डू यू बिलीव इतना जरूरी होता है एक आपके आसपास अपडेट्स रखना? हर स्ट्रीम में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है. तो आपको क्या लगता है कि होटेलियर के दिमाग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? You can also answer me in the chat window, or you can unmute yourself. Anyone who's trying to answer this? Anyone? Guys, are you there and ready to answer this? So I think many who are okay. No issues. Even others can answer. I think there are many students apart from Roshesh in the session who can answer this question. Okay. I think Tanvi has given a good answer. It is necessary to keep up with the daily trends. ये काफी अच्छी चीज हो जाती है. हम होटल्स को गेस्ट को लुभाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को गेस्ट को लुभाने के लिए अपने अपने ट्रेंड्स के साथ अपने हम लोग को समझना पड़ता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या क्या चीजें चल रही है. आज जब हम लोग एंटरप्रेन्योर्स है, तो व्हेन आई आल्सो रन अ बेकरी, एज बाला सर सेड यू ऑलरेडी. सो क्या होता है कि जब हम लोग चीजों को समझते हैं, इट्स नेसेसरी कीप अप. एंड yeah, that's good. In fact, that's very important. इकोनॉमी को समझना, इकोनॉमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे व्हेन होटल रनिंग एज अ बिजनेस राइट नाउ. सो अपने ट्रेंड्स को समझना, हम लोग को भी समझना पड़ता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है. किसी इंडिया के अच्छे कोई इंडिया का अच्छा पेस्ट्री, या वर्ल्ड का कोई अच्छा पेस्ट्री शेफ, या वर्ल्ड का कोई अच्छा शेफ है, व्हाट ही इज डूइंग, क्या क्या चीजें हो रही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, क्या हो रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो इस सेक्टर को अभी इफेक्ट कर सकती हैं. करेंटली पैंडेमिक बहुत ज्यादा एक बड़ा क्वेश्चन हो चुका है हमारे लिए. सो I think it's very important. इसी कारण से I think Tanvi has given a very good answer. Thanks, Tanvi, and yeah, and thank you, Roshesh. Yeah, now let's move towards the last section, but not the least section. That is the logical reasoning. Logical reasoning को ठीक करने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो है sectional mocks. Sectional mocks हमारे लिए इसलिए यूजफुल है. काफी सारे सेक्शन में sectional mock की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है ना, क्योंकि वो फुल लेंथ या एक्चुअल एग्जामिनेशन का हमको आइडिया दे देते हैं. ओके, इतना चीज है कि सेक्शनल मॉक्स और फुल लेंथ मॉक्स, अगर मैं एक चीज कहूँ ना, तो अगर आप पढ़ाई नहीं भी करें और आप एक्सेप्ट फॉर जनरल नॉलेज, ये चीज सब पे अप्लाई होती है. अगर ये सब सेक्शंस ऐसे है ना, लाइक ये सब चीजें हमारे कॉमन सेंस या 10-12 तक पढ़ी हुई चीजें होती है सब जनरली. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स, एंड आप सिर्फ
अगर अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप सिर्फ जाइए और सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स दीजिए। ओके, मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस मैं इसलिए काफी बताता हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का सोच ही नहीं सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर जब हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे, मैं आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली शेयर करूंगा, स्पेशली बाला सर के साथ जब हम लोग हर बार हमारी प्रिपरेशन होती थी। सो हर एक मॉक टेस्ट के बाद जिस दिन रिजल्ट आता था ना, उस दिन एक बहुत लंबा डिस्कशन होता था उस मॉक टेस्ट के पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे क्या है, ऐसे क्या कंसेप्ट हैं। देन नेक्स्ट डे यूज्ड टू बी लाइक उस क्वेश्चन, उस पूरे पेपर में जो जो चीजें हुई उस चीजों को हम डिस्कस करते थे। फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उसमें क्वेश्चंस आते थे। सो क्या अगर अभी क्वेश्चन क्या आने की है, अजम्पशंस के थ्रू उन क्वेश्चंस को भी बनाया जाता था। एंड आई थिंक अभी भी फूलजन की जो मॉक सीरीज है वो इतनी अच्छी है, इट वाज इवन फार मोर डिफिकल्ट दैन द current kind of exams what we are facing. So I believe one thing we can do is that all of us who are preparing, you all can go for a mock test on a weekly basis. I'll just recommend you one thing कि Foolsden की तरफ से भी हमारी एक mock test की series है, which you can purchase from Foolsden, and you can start preparing yourself, and believe me, कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट में अपियर करने के बाद आप अपने आप को एग्जाम के दिन इतना कॉन्फिडेंट पाएंगे कि हो सकता है कि आप Okay, guys, I think Prajwal sir log out हो गए हैं due to some technical issues. Just give us a minute. I think he'll log in again. He'll just join us in a moment, maybe. Just give us a minute. He'll join us, okay? hope I am visible and audible. Really sorry, कुछ network issues के कारण I just got through it. So wait, I have to present the thing. Okay. So yeah. Yeah. So I think hope the slide is visible to you all. Can someone please reply to me from the chat window or through the yeah. Yeah, okay. I think I'm audible and visible both. Okay. So last thing, अगर आप like अलग अलग कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस की कट ऑफ रैंक्स मैंने यहाँ डाल दिए जो लास्ट ईयर हम लोगों ने राउंड 2 में, लाइक आई वाज सिलेक्टेड इन आईएचएम फ्रॉम राउंड 2। आईएचएम बैंगलोर मेरा राउंड 2 में सिलेक्शन हुआ था, राउंड 1 वाज विद कोलकाता फॉर मी। सो इफ यू आर लाइक, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इनका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, एंड किस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको कितना टाइम लाइक देने के बाद और क्या रैंक आने के बाद आपकी एक एक चीज आएगी, वो है यहाँ पे। आई माय रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक 972, एंड my score was around 147 out of 200. I got around 147 questions correct. So 147 questions, basically it was my score. So 147 score पे अगर आपको out of 200 147 अगर आप score करते हैं तो अगर आपको 972 रैंक मिलता है इस टाइम पे, so you can just estimate कि आसपास के रैंकिंग्स क्या होगी. So this is the cut off rank. Okay.
The next one is चलिए आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके सब इंडिया के एक अच्छे IHM में पहुंचेंगे, ये मेरा मानना है। ओके, बिकॉज आई थिंक आप सबके सब बहुत सीरियसली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो व्हाई IHMs आर द बेस्ट रिकमेंडेड कॉलेजेस, और आपको IHMs में जाना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एनी अदर प्रोग्राम, ये मेरा मानना पर्टिकुलरली है। क्योंकि IHM इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी होती है जो खुद IHM के प्रोडक्ट्स होते हैं, और दे आर वेरी हाईली पेड एंड हाईली स्किल्ड, और अपने स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट प्लेसमेंट। IHM की प्लेसमेंट का मुकाबला पूरे इंडिया में किसी भी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। यहाँ पे कंपनीज खुद हाथ फैला के यहाँ क्या स्टूडेंट्स को लेने आती है। यू वोंट बी बिलीविंग मी, in spite there was a question due to the pandemic, is it okay to pursue hotel management? Let me tell you one thing, in spite of the pandemic situations, IHM Bangalore this year placed 80% of its students into various properties of India, whether it is hotel or it is about various industries and brands. Okay, next is government funded. Of course IHM की fees काफी other institutes से काफी कम होती है, so it is of course a very important thing, IHM की फीस काफी कम है, तो आई बिलीव इट इज वेरी मच अफोर्डेबल। नेक्स्ट इज इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेबल। IHM की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अगर आप आपने किसी IHM से पढ़ाई कर ली तो ये किसी भी अच्छे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बराबरी करने लायक है, क्योंकि हमारी जो डिग्री होती है या जो IHM में डिग्री मिलती है वो BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफर होती है, एंड NCHM CT और IGNOU मिलकर इस डिग्री को ऑफर करते हैं, which is of course the one of its best of its kind. Okay, so moving towards the next slide, it is about the placements. चलिए आपने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट भी कर लिया, सो ये सारे ब्रांड जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को लेने आते हैं। आई थिंक ताज, ओबरॉय, ITCN, हयात एंड KFC एंड डोमिनोज, इन सबको बेसिकली मुझे कोई नाम लेने की इनकी जरूरत नहीं। आई थिंक ऑलमोस्ट हर बंदा जो होटल मैनेजमेंट के जनरल लाइफ में भी बैठा है ना, वो इन चीजों के बारे में जानता है अपने हिसाब से कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको इन सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में जहाँ पे एक रात रुकने का खर्चा शायद 1 से 2 लाख रुपए हो सकता है, इन प्रॉपर्टीज में इंडिया की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड चेन्स में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री, आप होटल मैनेजमेंट के थ्रू उसमें अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं KFC और डोमिनोज की बात करता तो आप शायद सीधा एक मैनेजर लेवल की पोजीशन पे वहां बैठेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर होटल मैनेजमेंट। So hope I was like clear with all the things what I told you right now, and thank you so much for bearing with me from this entire presentation session. And now I'll like to keep the forum open for questions. Many students who are here would be ready with their questions. I would like to put up the first question. I think there was a question put up. Can you please repeat your question once more? I think I don't remember the name who asked me this question due to the pandemic. Yeah, सिमरन सर, सिमरन का क्वेश्चन था Yeah, sir. Simran कि पैंडेमिक के चक्कर में ऑलरेडी बहुत सारे होटल्स एंड ऑल डाउन है, तो फिर क्या हमें अभी होटल मैनेजमेंट करना चाहिए? इज दिस द राइट टाइम? ये उनका क्वेश्चन था। Okay, sir. I'll just answer this question to Simran. Simran, आपका क्वेश्चन काफी वैलिड भी है, बट मैं इतना कहूंगा कि डिसहार्टन होने की कोई बात नहीं है। पैंडेमिक हो सकता है आने वाले साल या 2 साल में खत्म भी हो जाए, बट जब तक अगर आप होटल इंडस्ट्री में या होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एंटर करेंगे तब तक हो सकता है होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े बूम की ओर जा चुकी होगी। और इस समय मुझे लगता है कि ये टाइम सबसे बेस्ट है कि जब आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री की चीजों को सीख सकते हैं ज्यादातर। बिकॉज एक बार जब ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाए, होटल इंडस्ट्री ऐसे बूम पर जाने वाली होगी यू कांट इमेजिन। लोग आई थिंक एज अ पर्सन हम भी घर पे रह रहे के थक चुके होंगे, and people would be out for traveling, leisure tourism and what not would be, tourism industry अपने आप से बढ़ चुकी होगी, और tourism industry का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होटल होता है। सो डोंट वरी, होटल मैनेजमेंट इस समय तो सबसे बेसिकली इस टाइम पे जाना होटल मैनेजमेंट के अंदर मेरे हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको लाखों की प्लेसमेंट बड़ी आसानी से मिल जाए होटल के सेक्टर में। एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट। ये जो आज तक हमारे यहाँ के प्लेसमेंट डायरेक्टर्स हैं और IHM बैंगलोर के कई सारे जो हमारे प्लेसमेंट सेल के लोग हैं, वो ये बात बोलते हैं। इन स्पाइट यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, IHMs के अंदर में इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन 83 से 85% की प्लेसमेंट है हमारे यहाँ आज भी, इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक। यू कैन इमेजिन अभी भी होटल्स, काफी सारे होटल जो है अपने यहाँ स्प्रिंग क्लीनिंग और काफी सारे एम्प्लॉइज लगे हुए, क्योंकि इतना बड़ा होटल है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। So you can of course go for hotel management. It is 110% good. Kindly do not regret, do not think over this decision.
because I promise you, you won't be regretting upon your decision further. Okay. How much time we should dedicate towards our preparation, and how much time did you dedicate? This is from Niket Bhatia. So Niket, the question is very valid. कितना time देना चाहिए, कितना time नहीं देना चाहिए, and I won't be saying आपको दिन में कम से कम 12 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए. मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद 12 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ता था. मैं एक चीज होती थी मेरे से कि टाइम देना, इट इज नॉट अबाउट लाइक कितना टाइम देना चाहिए. कई बार आपको 1 घंटा भी लग सकता है, कई बार आपको 2 घंटे लग सकते हैं, कई बार आधे घंटे में भी काम हो सकता है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर एबल टू ग्रैब अप थिंग्स. अपन मैं लाइक व्हाट आई डिड वाज लाइक आई वाज ऑलरेडी अ स्कूल स्टूडेंट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग. मैं ड्रॉप आउट नहीं था. सो मेरे पास क्या था कि मैं स्कूल और अपने प्रिपरेशन दोनों को मैनेज करता था साथ ही साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई आपको शायद पता होगी कि बहुत ज्यादा रीडिंग बेस्ड पढ़ाई होती है. So every day after my schools, what I did was मैं घर आता था. Approximately 2 घंटा like in the institute I used to devote with the teachers कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, and how we should proceed for our preparation की अपनी strategies बनती थी. And apart from that, घर में आने के बाद around दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, because पूरे दिन का exhaustion के बाद चीजें नहीं हो पाती होती. And when it was a lockdown, after my the completion of my board exams, they were almost done. I dedicated almost 2 hours for my preparation, and plus around 2 hours for the mock tests what I gave. So around 4 hours along with small breaks in between. So शुरू में जब आप अभी भी बैठे हैं, you can go for like 1 घंटा 1.5 घंटा और अगर इस ऐसी स्थिति में तो आप 1 या 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक्स दीजिए. मॉक टेस्ट देना काफी जरूरी है. सो प्रिपरेशन का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है. आई डिडंट काउंट हाउ मच आई डिवोटेड टू माय प्रिपरेशन, बट आई लिटरली काउंटेड कि कितना देर मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत चीजें साथ में मैनेज करनी पड़ती थी. अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आई थिंक आप ये बात समझेंगे मेरी. सो इट्स लाइक वैरीज फ्रॉम एवरीवन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज और बोलूंगा कि स्ट्रैटेजीज हर किसी की अलग होती है. सो मैंने कई चीजें आपको अपनी बताई हैं, जो अपनी कुछ खुद की स्ट्रैटेजीज बताई थी, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने आप को समझिए कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी और अपना टाइम स्केड्यूल प्रिपेयर कीजिए कि आप कैसे करते हैं. एंड अगेन, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए कि डेली मैं किस सब्जेक्ट को कितना देर दूंगा और किस सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ूंगा. ओके, सो आई थिंक I hope I answered your question. Next question, please. Okay, so I have a question for you. Yeah. The question is, how much time during the exam should we, give to each section? Like there are 5 sections, English, maths, logical reasoning, service sector aptitude, GK. So like कितने देर में एक section हो जाना चाहिए? कौन सा section कितने देर में हो जाना चाहिए? See, the time dedicated to every section is decided by 2 factors. Okay. Bro, I forgot your name. Can you please tell me your name? Roshesh. Roshesh. Okay. So Roshesh, there are this entire एक फैक्टर होता है. ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था जब मैं प्रिपेयर करता था, तो एंड आपको मैं वही आंसर दूंगा जो मुझे मेरे टीचर्स ने दिया था, और ये चीज मुझे प्रैक्टिकली सही लगी. हर सेक्शन को टाइम डिवोट करने का जो स्ट्रैटेजी होता है, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. Number 1, it is about the number of question and their difficulty, and second is how we respond to those questions. Okay, difficulty हर किसी के लिए अलग होती है. हो सकता है दूसरे को डिफिकल्ट लगने वाला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल हो. ओके, सो डिफिकल्टी एंड द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन. ओके, ये 2 चीजें डिपेंड करती है. मेरा ये मानना है कि अमाउंट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाए तो हमारे हाथ में सिर्फ 3 घंटा है, और 3 घंटे में अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं. बट आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप अपने हिसाब से देखिए. मैं इसलिए मॉक टेस्ट देने के ऊपर बात कर रहा था यहाँ पे कि हर सेक्शन में कितना टाइम लगता है. एंड अराउंड मुझे इंग्लिश को कंप्लीट करने में अराउंड 45 मिनट्स लगते थे, पूरा सेक्शन कंप्लीट करने में. अगर आई एम टेकिंग एवरी सिंगल इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज हम सब वॉचेस के साथ ही बैठे थे वहाँ पे. सो वी ऑल नो कि कितना टाइम लगता है. आई जस्ट कैलकुलेटेड माई टाइम, कितना देर किस में जाता है मेरा. सो आई टुक कि इंग्लिश में 45 मिनट्स, जीके में मुश्किल से 15 मिनट जाना चाहिए, क्योंकि जीके इज इवन 10 मिनट्स कैन वर्क फॉर यू, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कि वही होते हैं जो आपको याद रखते हैं. मैथमेटिक्स विल टेक अ बिट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, एंड थोड़ा सा समय लेता है आपका. Apart from that, service sector aptitude reading based है, तो service sector aptitude will take some around 30 minutes from you. English भी I think you can dedicate around आप 45 मिनट्स मैंने बोला. आप चाहे तो आप अपना अराउंड
60 मिनट्स तक तो मैं नहीं जाऊंगा, 1 घंटा डेडिकेट करना सही नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को, बट स्टिल आई थिंक 45 मिनट्स इज आइडियल, बट स्टिल यू कैन गो टिल 50 मिनट्स, उतना ज़्यादा नुकसान का बात नहीं है यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड इज लाइक 30 मिनट्स लग जाते थे, जीके में 10 मिनट। मैथमेटिक्स का सेक्शन जो होता था, मैथमेटिक्स सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम काफ़ी होता था, तो मैथ्स का सेक्शन भले ही कम क्वेश्चन आते थे, बट यू नो हर क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा 50 मिनट जाता था। मेरा मैथ्स में 50 मिनट्स गया था जब मैं अपीयर कर रहा था। तो एंड आइडियल टाइम मैं किसी के लिए नहीं बता सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग यू नो आधे घंटे में, और यू नो जितना मेरे हाथ में टाइम बच गया 3 घंटे में, आई थिंक हाउ मच आई डेडिकेट टू एवरीथिंग फ्रॉम 45 मिनट्स टू 50। प्रज्वल सर, या प्रज्वल सर मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहूंगा। देखिए आइडियल टाइम पूछ रहे हैं रोशेश। रोशेश, आइडियल टाइम Yes, sir. जीके के लिए 10 to 15 मिनट्स, इंग्लिश के लिए आइडियली 30 मिनट्स, बट जैसे प्रज्वल सर बोल रहे हैं आप 45 मिनट्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए अगेन 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, 1 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, तो आप 45 to 50 मिनट्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड सर्विस सेक्टर बहुत फास्ट बनता है, बस रीडिंग बेस्ड होता है, तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली उसको 30 से 40 मिनट्स में बना सकते हैं, 40 मिनट्स मान लीजिए। ठीक है, एंड इंग्लिश अगेन 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 to 45 मिनट्स, ये एक आइडियल टाइम हम बोल सकते हैं सारे सेक्शंस का। Okay, sir. एंड अगर किसी के माइंड में ऑर्डर डाउट होगा कि कौन से सेक्शन से पहले चालू करना चाहिए, फिर Yes, किस sir. पे मैं जाना यही चाहिए, पूछने तो वाला इसमें एक जनरल स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ये रहता है कि यू स्टार्ट विद द सेक्शंस जिसमें आपको टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपको चीजें आती हो चाहे नहीं आती हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीके, जीके में अगर आपको आता है तो भाई आप सारे बना लोगे, नहीं भी आता है तो आप छोड़ दोगे, बट टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ऑलवेज स्टार्ट विद जीके, then go to service sector aptitude, then you can go to the English section, and then reasoning and last में maths। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स मैं इसमें लास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सॉल्व करने वाले सेक्शंस होते हैं, इसमें टाइम लगता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनको हमेशा लास्ट में करना चाहिए, उससे क्या होता है कि आप बाकी सेक्शंस का आपका टाइम वेस्ट होने का चांसेस मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते थे, दे स्टार्ट विद मैथ्स, तो मान लो जैसे मोदी जी ने कहा था ना अभी बोर्ड्स के टाइम पे कि स्टार्ट विद द टफेस्ट सेक्शन, वो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करने गए तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर आप मैथ्स से चालू करोगे तो हो सकता है आपका 1-1.25 घंटा मैथ्स ले ले, तो क्या होगा कि बाकी सेक्शंस में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आपका स्कोर भी कम हो जाता है। ठीक है, सो या दीज आर द पॉइंट्स। या ओके, Thank you, आप लोग sir. कंटिन्यू कर सकते तो हैं, प्रज्वल इनफैक्ट सर। ये चीज काफी है जिसमें मैं एग्री करता हूँ, जो मेरे साथ हुई, यू नो, जी सर, so you know I think जी answer your नेक्स्ट question, Roshish. या Next question is from Shani Shub. It's so it's he's the science student and Excuse me. KB. Bala sir, can you mute your mic? Voice echo हो रहा है थोड़ा. या Okay, thank you. Okay, so I think we can move further. Shani is a science student and she is at KV and now she's in class 12 in 2022. She'll be having a CBSE board exam and unable to spend more time with her NCHMCT JEE preparation. I have planned to prepare very dedicatedly after my 12th board exam for 1 month, but now I'm just working on my English and GK. Is it okay? So I think, you know, more as an aspirant, currently I'm not affiliated to answer this question. Bala sir, can you please address this question from your side? Because, you know, I believe एक रोज पढ़ाने वाला mentor उस चीज को ज्यादा अच्छा आंसर करेगा. सर सॉरी मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं। So the question is that she is currently in 12th and she is preparing for a CBSE board exam, and as the examinations are getting delayed, she doesn't knows what to do now, and she is only preparing for her GK and English section. Is it okay to be done in that way? Answer your answer. या सो देखिए अभी आपके बोर्ड्स आ गए हैं, राइट, टाइम का लिमिटेशन है, तो इट्स ओके इफ यू आर डूइंग योर जीके एंड इंग्लिश डेली, दैट्स ओके। साथ में बस एक चीज और करिए चांदनी, जैसे प्रज्वल सर बार बार बोल रहे थे, मॉक टेस्ट को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, टेक एटलीस्ट 1 मॉक इन 2 days, कम से कम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उससे आपका ना बाकी सारे सेक्शंस का भी तैयारी होते रहेगा और आपका फ्लो बना रहेगा। ठीक है चांदनी, होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Okay, sir. Thank you. Thank you very much. So next question, please. Anyone?
Guys, no more questions from your side. Okay, Niket Bhalla. Sir, but how can we give mocks if our preparation is not complete yet? Okay, Niket, I'll just give this, sir. I would like to answer this question. Yeah, sure. Okay, sir. So, yeah, mic mute, please. Yeah. Okay. So Niket, for giving a mock test, you don't need to prepare anything. Don't worry कि mock test एकदम भारी होता है. Mock test में including NCHM CT JEE के actual exam में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कभी ना कभी पढ़े होते हैं. ओके, मॉक टेस्ट में कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती. मैंने सेक्शन वाइज प्रिपरेशन में सिर्फ इसलिए बात की थी कि मेनी स्टूडेंट्स आर स्पेशली डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर प्रिपरेशन और अलग से प्रिपेयर करते हैं. मेरा बट ये मानना है कि किसी भी मॉक टेस्ट को देने के आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है. ओके, आप सिर्फ बैठिए, उस टाइम को वॉच कीजिए एंड क्योंकि टॉपिक्स काफी जनरल है अपने आप में. ओके, हर जगह से रिलेट करते हैं टॉपिक्स, तो इट्स नॉट एन इशू. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पढ़ना ही है हर मॉक टेस्ट के पहले. आप बिना पढ़े भी अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं. आप उसमें भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं. काइंडली डोंट वरी अबाउट दैट. बस ट्राई टू हैव वन, बिकॉज वो आपको एग्जाम के टाइम पे अपने एग्जाम के टाइम के अपने माइंड को प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगा. ओके, एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी चीज को पढ़ना जरूरी नहीं होता, बट उस चीज को सॉल्व करने का तरीका और उस चीज को टैकल करने का तरीका आना बहुत जरूरी है. So I think this is the answer, and which I can give towards your question. Hope this answers your question. Yeah, let's take one last question, sir. एक last question जो भी अगर कोई पूछना चाहें, and with that we'll end the session. Okay, sir. Sure. Guys, any more question from your side? If there are no questions, maybe we can. Yes, sir. We can. So I'd like to, give the note of thanks, Prajwal sir. So guys, thank you so much. Thank you so much for connecting with us. Hopefully ये session आप लोगों के लिए fruitful रहा होगा. I would like to thank Prajwal for taking time out of all his busy schedule, क्योंकि he is a guy जो हमेशा busy रहते हैं, right? Not just with the studies, but मैंने आपको बताया था कि he has also started a brand of his own. तो वो काफी चीजों में इन्वॉल्व और बिजी रहते हैं. थैंक यू प्रज्वल, संडे का 1 घंटा निकाल करके Thank you so much, sir, for calling me here. अच्छा लगा होगा. Thank you so much. Yeah, same session will also go to our YouTube channel, तो उसको देखिएगा. Okay, and just like the video and please share it with your friends also if you really found it useful. There is one last. Yeah, you may take the question, and with that we'll end the session. Okay, sir. I have a last question. We'll be just ending the session. Okay. Time preparation of boards and very easy. In fact, when you are going for your preparation, आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा देना मुश्किल से, उससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं करता एग्जाम. Don't worry about it. Spare only 1 hour a day. 1 to 1.5 hour. Apart from your mock tests. Yeah. Hope this answers. With that, maybe we may end the session. Yeah. Thank you all. Thank you for connecting. Have a good day. Cheers. Bye bye. Yes, sir. Thanks Sir, all. आप end कर दीजिए. Okay, sir. Sure, I am ending the meeting. Okay, sir. Sure, I am ending the meeting.